نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بڑی محبت تھی۔ مسواک جانتے نا جو لوگ کرتے ہیں مسواک، اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو اپنے کان میں لگا کر رکھا کرتے تھے، کان میں، اور جیسے ہی کہیں اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، آپ کان سے مسواک نکالتے تھے، رگڑتے تھے، وضو بناتے تھے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ سوچئے اتنی محبوب چیز تھی مسواک۔ آپ کو مسواک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگے گا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، رخصت ہونے والے ہیں، بستر سے اٹھ نہیں پاتے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں میری ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے، میرے شوہر کو اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے وہ گھر میں آئے اور اس وقت وہ مسواک کر رہے تھے، ان کے پاس مسواک تھی، وہ دانتوں پر رگڑتے ہوئے مسواک کرتے ہوئے گھر کے اندر گھس گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا جو میری ران پر میرے گود میں سر رکھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ کی نظر مسواک کے اوپر جم گئی اور اشارہ کرنے لگے، عائشہ یہ مسواک مجھے چاہیے۔ اب دیکھیے اٹھنا بیٹھنا آپ نے پھر شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اشارہ کیا اللہ کے نبی نے، صحیح بخاری کی روایت کہ اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اشارہ کیا، سر ہلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لے لی اور میں نے اللہ کے نبی کو وہ مسواک دے دی، لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو اپنے دانتوں پر رگڑنا شروع کر دیے، اور مسواک ایسے ایسے کی جاتی ہے، اوپر نیچے۔ بہت سے لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں نا، سنت کیا ہے، اللہ کے رسول کیسے مسواک کرتے، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، نبی اکرم کی زندگی کا کوئی گوشہ کوئی کونا باقی نہیں ہے۔ آپ مسواک جو کرتے تھے وہ یہ مسواک کرنے کا اوپر نیچے آپ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی مسواک کرنا شروع کر دیے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی اہمیت ہے مسواک، آخری وقت ہے آپ کا اور آپ مسواک کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اچانک مسواک نبی اکرم کے ہاتھ سے گر گئی، کرتے کرتے، اور پانی کا برتن، پانی کا پیالہ ہمارے قریب رکھا تھا، آپ پانی کے برتن میں، پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالنے لگے، ایسے پانی کے پیالے میں ہاتھ تر کرتے، اپنے جسم پر ملتے، ایسے ملتے جا رہے ہیں، چھینٹا مارتے جا رہے ہیں، پانی کو برتن میں ہاتھ ڈالا اور اپنے بدن پہ مل رہے ہیں، اپنے بدن پر اس پانی کو چپڑ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ۔ موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، موت آسانی سے نہیں آتی، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، تکلیف ہوئی، روح کوئی آسانی سے نہیں نکلتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، سوچ لیجیے۔ آپ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے، نکالتے، اپنے جسم پر ملتے اور کہتے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی دشواری ہے۔ حدیث لمبی ہے، آگے کے واقعات کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسواک اللہ کے نبی کو اتنی پسند تھی، اتنی پسند تھی کہ آپ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، ہر نماز سے پہلے آپ مسواک ضرور کیا کرتے تھے، سوتے وقت جب آپ بستر پہ جایا کرتے تھے تو مسواک کر کے سونے کے لیے بستر پہ جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں حضرت عائشہ کی گود کے اندر بھی مسواک کی
اور مسواک کرنے کے بعد پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا، اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا. جس مسواک کو آخری دن بھی آپ نے نہ چھوڑا ہو، آخری وقت میں بھی آپ نے اپنے سے جدا نہ کیا ہو. مسلمانوں، اے محمد رسول اللہ کے ماننے والوں، اے نبی پر ایمان رکھنے والوں، آج اس مسواک کی کوئی اہمیت ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں نہیں رہ گئی. ٹوتھ برش کرنے والوں، کولگیٹ استعمال کرنے والوں، پیپسوڈینٹ استعمال کرنے والوں، کلوزپ استعمال کرنے والوں، تم تو گاؤں اور دیہات میں رہتے ہو، بڑی آسانی کے ساتھ مسواک ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے، لیکن ہم اور آپ مسواک سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں. ماڈرن ماحول میں اور ویسٹرن کلچر میں ہم نے مسواک کو تو گویا اپنے معاشرے سے ختم ہی کر دیا ہے. اس مسواک کو جس کو اللہ کے نبی نے آخری وقت بھی نہیں چھوڑا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو لگ گیا، لیکن آپ نے آخری وقت تک بھی اس کو فرض قرار نہیں دیا اپنی امت کے لیے. کیوں؟ اگر آپ فرض کر دیتے تو کتنی مشکل ہوتی ہے. جبکہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے اور اس حدیث کے اندر نبی اکرم کی رحمت چھلکتی ہے. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا، لامرتهم بالسواک، تو میں اپنی امت کو حکم دیتا، یعنی میں فرض کر دیتا ان کے لیے مسواک کرنا. میں اپنی امت کے لیے مسواک فرض نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری امت کے لیے مشکل ہے. مسواک کو فرض نہ کرنا یہ نبی کی رحمت پر، نبی کی رحمت کی دلیل. جو اتنی امپورٹنٹ چیز ہو، جس کو اللہ کے نبی نے اپنی کبھی زندگی میں، پوری زندگی میں نہ چھوڑا ہو، یہاں تک کہ انتقال والے دن، جس دن آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، روح جب سے انسوری سے پرواز ہونے والی ہے، آخری وقت بستر پر لیٹے ہیں تو مسواک کر رہے ہیں. اس سے مسواک کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی امت پر فرض نہیں کی. صرف اتنا کہا ہے مسواک کرو، پاسبل ہو تو مسواک کرو، اتنا کہا ممکن ہو تو مسواک کرو. لیکن کیا وہ تو من مانی حدیثیں ہیں اور لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت روایتیں پیش کر ڈالی ہیں. ایک مرتبہ مسواک کر کے جو نماز پڑھے گا اس کی نماز 70 گنا بڑھا دی جائے گی، اس کو 70 گنا ثواب ملے گا. معاف کیجیے گا، یہ صحیح حدیث نہیں ہے. مسواک کی اہمیت ہے، لیکن اس کو اللہ کے رسول نے فرض نہیں کیا ہے. فرض کر دیتے تو کیا حال ہوگا. آپ لوگ تو گاؤں والے مل جاتی، ہم لوگوں سے پوچھو جو لکھنؤ کے بیچوں بیچ مین سٹی میں رہتے ہیں، دور دور تک درختوں کا پتہ نہیں ہے، مسواک بکتی بھی نہیں ہے. آس پاس کی جا کر خرید لو. اور ہم لوگوں کو امین آباد اور حضرت گنج کی طرف جانا پڑتا ہے. جب ایک بار گئے تو 2-4 مسواک خرید لائے اور فریج کے اندر رکھ دی. میرے بھائیو ذرا غور کرو کہ اگر یہ مسواک فرض ہو جاتی تو ہم شہر کے رہنے والے لوگوں کے لیے کتنی دقت ہوتی اور کتنی دشواری ہوتی. اس لیے یہ رحمت کی دلیل ہے. جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہاری جنس ہے. تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تمہارے فائدے کا حریص ہے، تمہارے فائدے کا لالچی ہے، اور مومنوں کے ساتھ اس کا معاملہ بڑا رحم کا ہے. مومنوں کے لیے وہ خاص رحمت رکھتا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ وہ بڑا ہی مہربان ہے. یہ رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے ساتھ. نماز فرض کی ہے تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن نبی کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا. لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ اپنی امت کے لیے یہ رحمت بھرا پیغام دے رہے ہیں. وہ لوگوں، رب کی عبادت تو تمہیں کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے،
لیکن یاد رکھنا اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، یہ رحمت ہے نبی کی، بیٹھ کے پڑھ لو، اور بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھ لو، اور لیٹ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو، ہونٹ ہلا کر پڑھ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو 20 روپے کی بسلری بوتل خرید کر وضو بناؤ، اگر پانی کے لیے وضو کے لیے نہیں مل رہا ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر پانی کے لیے دوڑو نہیں، اگر تمہارے علاقے میں آس پاس تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو ان واقعات میں اور نبی اکرم کے ان احکامات میں رحمت ہی رحمت چھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن صرف اتنا ضرور کہا ہے کہ نماز کو چھوڑو مت، کسی بھی حال میں پڑھنا ہے۔ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو، ہونٹ ہلا کے پڑھو، لیکن تمہیں پڑھنا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ اپنی امت کو رحم برا رحمت برا پیغام سنا رہے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور ایسے فرض ہیں کہ اگر قصدن جان بوجھ کر عمدن ایک روزہ بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا، ذرا سمجھیے گا پہلے میری بات کو، ہم پہلے روزے کی سختی بتا رہے ہیں آپ کو، یہ روزہ کتنا زبردست فرض ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اگر کسی نے قصدن جان بوجھ کر عمدن ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، میری بات کو پھر سے سنیے گا، جان بوجھ کر بلا کسی بیماری کے، بلا کسی عذر کے، اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر ایک بھی روزہ چھوڑ دیا اور وہ چاہتا ہے کہ اب عید کے بعد ہم اس کو پورا کر لیں، قضا تو کر سکتا ہے، قضا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو روزہ اس نے چھوڑا ہے جان بوجھ کر، اس چھوٹے ہوئے روزے کے ثواب کے برابر پہنچنا چاہے، اس روزے کے مقام اور مرتبے تک پہنچنا چاہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمدن قصدن جان بوجھ کر اس نے جو روزہ چھوڑا ہے، اگر اس ایک روزے کی تلافی کرنا چاہے تو پوری زندگی وہ روزہ رکھ لے، پوری زندگی روزہ رکھے، تب بھی وہ اس چھوٹے ہوئے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پوری زندگی کیا ہوا ٹھیک ہے، لیکن فکر کے بعد کیوں لگا ہوا تھا کیا تمہارا کھانا؟ ڈسٹرب نہ کرو، میں پہلے ہی کہہ دیا تھا ابھی جو کرنا ہو کرو، ہم کسی کو پیشاب کرنے کے لیے بھی نہیں اٹھنے دیں گے، یہی کرو جس کو کرنا ہے، جانے نہیں دیں گے۔ ہاں تو میرے بھائیوں، اب اس سے اندازہ لگا سکتے کہ روزہ کتنا زبردست اور کتنا سخت فرض ہے۔ ایک چھوٹ جائے روزہ قصدن جان بوجھ کر تو پوری زندگی روزہ رکھ کر بھی اس کے ثواب کو ہم اتنا زبردست اور سخت روزہ۔ لیکن امام کائنات اپنا رحم بھرا میسج دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے یہ حکم نافذ کر رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو اگر رمضان کے مہینے میں تمہیں سفر کی ضرورت پیش آ گئی، اگر تم مسافر ہو، دور دراز کا تمہیں سفر کرنا ہے یا بیمار ہو گئے روزے کی حالت میں، تو فَإِن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر سفر کی حالت میں ہو یا بیمار ہو گئے ہو تو ایسی کنڈیشن میں تم رمضان کا روزہ بھی چھوڑ سکتے ہو۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور رمضان کے مہینے کے بعد جب تم صحیح ہو جاؤ تو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لو۔ یہ رخصت، یہ رحم نہیں تو اور کیا ہے امت کے اوپر؟ کتنی بڑی ہمیں اور آپ کو فیسلٹی مل رہی ہے کہ سفر میں، ہاں اس میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، مرضعہ۔ اگر تمہاری گود میں کوئی بچہ ہے جو تمہارا دودھ پیتا ہے اور تمہارے روزہ رکھنے سے اس بچے کے دودھ میں کمی ہو سکتی ہے اور وہ بھوکا رہ سکتا ہے، تو تم بھی
रोजा छोड़ दो, और जब रमजान का महीना चला जाए, खत्म हो जाए, बाद में मौका मिले तो तुम उसकी कज़ा कर लो। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह दूध पिलाने वाली औरत को भी हुक्म दे रहे हैं, और रहमतुल लिल आलमीन की रहमत तो देखिए मोमिनों के साथ कैसी है कि अगर किसी औरत के पेट में बच्चा है, हमल है, तो जाहिर है माँ जो खाती है वही बच्चे को मिलता है, वही ग़िज़ा बनती है। अगर माँ के रोजा रखने से उस बच्चे की सेहत पर जो पेट में पल रहा है अगर असर हो सकता है, उस बच्चे की सेहत गिर सकती है या वो बच्चा ज़ाय हो सकता है, तो उस हामिला औरत को भी अल्लाह के नबी हुक्म दे रहे हैं कि तुम रोजा छोड़ दो जब वज़े हमल हो जाए, और जब बच्चा तुम्हारा दूध छोड़ दे, चाहे 1 साल चाहे 2 साल के बाद दूध छोड़े, तो 2 साल के बाद तुम उन रोजों को पूरा कर लेना, लेकिन उस मौके पर छोड़ दो। इतनी सहूलत दे दी है, ये नबी की तरफ से रहमत नहीं तो और क्या है। बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान है मोमिनों के साथ, रहमत है ये नबी की मोमिनों की। वो नबी हमारे लिए इतना मेहरबान, और हम परेशानियों पे परेशानियां अपने लिए पाले चले जा रहे हैं। जब तक मोटरसाइकिल नहीं दोगे, तुम्हारी बेटी के हाथ पीले नहीं होंगे, हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे। वो मेहरबान नबी, वो रसूले रहमत हमें ये कह रहा है, शादी आसान कर दो, निकाह को आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए। हमारे नबी कहते हैं निकाह आसान कर दो, और हम अपने ऊपर मुसीबतें मोल लेकर निकाह को मुश्किल बनाए। जानते हो नबी की रहमत कैसी थी? एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और कहने लगी कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तो नहीं कर सकता हूँ, अब जितनी गुंजाइश थी कर ली, अब मजीद नहीं करना। एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा इसके साथ शादी करोगी? उसने कहा आपके साथ करना चाहती हूँ, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ कर दीजिए। आपने कहा उस सहाबी से महर क्या दोगे? औरत से नहीं पूछा तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा बाप कितना माल छोड़ के गया है, इस लड़के को कितना मिलेगा। आपने औरत से नहीं पूछा, आपने उस सहाबी से पूछा क्या तुम इस औरत को मेहर में क्या दोगे? उसने कहा मा इंदी शैउन, मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। पूरा वाकया आपने अपने उलमा से सुना होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा मेहर में। जाओ इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो गए और आए और आकर कहने लगे मा वजदतु खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी मुझे नहीं मिली। आपने कहा लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। अब वो जाने लगे। आपने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल जब लोहे की अंगूठी तक नहीं है देने के लिए तो मेरा क्या निकाह होगा। देखिए आसानी, देखिए रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखिए। अगर आज ये निकाह इसलिए छूट गया कि इस साहबी के पास इस औरत को देने के लिए कुछ नहीं है, तो बाद में आने वाली नस्ल निकाह को बड़ा मुश्किल बना देगी। आज इसका निकाह होना चाहिए। आपने उससे पूछा ये बताओ कुरान कितना याद? अपनी बेटियों को जहेज में कुरान तो दे देते हो सामान के साथ, ये पढ़ना, लेकिन साथ में इंटरनेशनल भिखारी को तुम एक हीरो होंडा भी देते हो, यामा भी देते हो। और मैंने इंटरनेशनल भिखारी जानबूझ के कहा जिसको बुरा लगता हो निकल के भाग जाए यहाँ से। जो अपने ससुराल से, अपने ससुर से उसकी बेटी के हाथ मांगने के साथ साथ मोटरसाइकिल की डिमांड करता है, वो इंटरनेशनल भिखारी है। वो उस फकीर से ज्यादा गिरा हुआ है जो लंगड़ा लूला और अपाहिज और किसी के दरवाजे पे जाके कहता अल्लाह के नाम पे दे दो। अच्छा लगता 10-20 रुपए देने में, बेचारे के हाथ पैर नहीं है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। इस भिखारी से तो अच्छा है जो अपने लड़के के नाम पे मांग रहा है। एक मारुति दे दो, एक हीरो होंडा दे दो, एक यामा दे दो। वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। फैसला करो, जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा भिखारी है, जो अपनी औलाद के नाम पे मांगे वो इंटरनेशनल भिखारी है। फैसला करो, ये इंटरनेशनल भिखारी है। और ताज्जुब तो ये कि उस गाड़ी पे बैठता है दामाद और उस पे हुर्र एक्शन से चलाता है। अबे चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं गया, भिकमंगनी गाड़ी पे बैठ के फख्र कर रहा है तू।
अबे उस लड़की के बाप ने तुझे भीख में दी है, उस पर बैठ के तू खुश हो रहा। नई गाड़ी अपने दुश्मनों को जला रहा। देख, अरे जला क्यों रहा है? तो खुद चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा के भीख की गाड़ी में बैठा हुआ है। मौलाना साहब, इसीलिए तो बिहार वाले बुलाते हैं तुम्हें, जो जूता मारते हो तो डायरेक्ट मारते हो। तकलीफ हो या ना हो, आपको इस बात का एहसास नहीं होता। तो मैं क्या करूं? 25 साल से बोलता चला आ रहा हूं, खत्म थोड़ी हुई है जहेज की लानत, और आज भी नहीं होगी। मेरे बोलने का भी कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी। वो मैं जानता हूं, वो तो सुरीली आवाज तो कोयल की भी होती है। लोग कहते माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रही है आवाज, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। ऐसे ही भूल जाओगे। चाय की होटल में कल बैठ के कहोगे माशाल्लाह तकरीर बहुत अच्छी हुई, लेकिन कल शादी होगी तो फिर कहोगे हीरो होंडा चाहिए। नहीं होता। और क्या मांगोगे? अपाचे बुलेट। अभी तो पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। मेरे भाइयों, जरा सुनिए मेरी बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान याद है? उसने कहा सूरह मुल्क याद है, सूरह दहर याद है, सूरह नबा याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सूरह क़यामा याद है। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? कहा क्या ये सूरतें तुम अपनी होने वाली बीवी को याद करा दोगे? कहा। आपने उस औरत से पूछा, ऐ खातून, अगर तुम्हारा ये शौहर होने वाला अगर तुम्हें ये सूरतें याद करा दे और यही सूरतें तुम्हारी मेहर हो जाएं, तो क्या तुम इन सूरतों को मेहर में कबूल करती हो? क्या इन्हीं सूरतों को अपना मेहर मान लेती हो? उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मेरे निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं तो मुझसे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? आपने उसी वक्त निकाह कर दिया। चूंकि उस औरत के बाप नहीं थे, भाई नहीं था, चचा नहीं था, इसलिए अल्लाह के नबी उसके खुद वली बन गए। जिस औरत का कोई न हो तो काजी निकाह पढ़ाने वाला उसका वली बन सकता है, उसका सरपरस्त बन सकता है। ये हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। तो अल्लाह के नबी उस औरत के वली बन गए और आपकी निगरानी में, आपकी सरपरस्ती में उस औरत का निकाह हुआ और आपने उस दोनों जोड़े को रुखसत कर दिया। न हल्दी मली गई, न उबटना मला गया, न लड़की वालों की तरफ से कुछ लड़कियां आई अंगूठी पहनाने के लिए, न होने वाली साली आई, न चोरों का पता, न डकैतों का पता। चोरों डकैत समझ रहे हो ना मैं किसको कह रहा हूं? बारातियों को। न चोरों का पता, न डकैतों का पता, किसी का पता नहीं जो लड़की वाले के यहाँ खाने पहुंच जाते हैं। अकल में भी ये बात नहीं आती, अकल भी इसको तस्लीम नहीं करती। लड़की वाला क्यों खिलाए? खाना पीने का ताल्लुक तो खुशी से है ना। हमें खुशी है, हम खिला रहे हैं चंद लोग। ईमानदारी के साथ बताइए कि जो बाप अपनी बेटी को उसके जिसको उसने 18 साल 20 साल पाला है, पोसा है, वो अपनी लाडली को विदा कर रहा है, रुखसत कर रहा है अपने आंखों के आंसुओं के साथ, उसके घर में खुशी का कौन सा? और उसके घर जाके खाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिसके दिमाग में ये भी हजारों ख्याल आ रहे हैं, पता नहीं मेरी बेटी एक नए घर में जा रही है, एडजस्ट हो पाएगी या नहीं? जिस लड़के के साथ मैंने निकाह किया है उसके माहौल में ढल पाएगी या नहीं? पता नहीं मेरी बेटी को उसकी सास कैसी मिलेगी, उसकी नजरें कैसी मिलेगी। अपनी बेटी की रुखसती के साथ साथ उस बाप के दिल में ये हजारों ख्यालात भी आ रहे हैं कि मेरी बेटी उस माहौल में रहेगी या नहीं रहेगी। बेशर्मो, शर्म करो, फिर भी लड़की वालों के यहाँ खाने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? कौन से मुंह से तुम लड़की वालों के घर में जाकर लुकमा चबा जाते हो, उसको हजम कर जाते हो? शर्म आनी चाहिए। अब कहोगे मौलाना साहब हम अकेले थोड़े जाते हैं, मौलवी लोग सबसे आगे रहते हैं। मौलवी लोग सबसे आगे रहते हैं तो मौलवी जो करेगा वो सब सही है। मौलवी तंबाकू खाता है तो क्या जायज कह दूं? मौलवी सिगरेट पीता है तो क्या उसको हलाल कह दूं? मेरे प्यारे साथियों, शरीयत वो नहीं है जो मौलवी करता है, शरीयत वो है जो मौलवी बोलता है कुरान और हदीस के नुसूस और दलाइल से। लड़के वाले के यहाँ खाना खाइए जिसको वलीमा कहा जाता है, शौक से खाइए क्योंकि खुशी का माहौल उसके यहाँ, वो खुश है। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने लड़के वाले को तो वलीमा करो, चाहे बकरी का नहीं, थोड़ा ही सा करो। अगर तुम ज्यादा पैसे वाले नहीं हो तो थोड़ा ही खिलाओ, लेकिन खिलाओ।
ताकि लोगों को पता चल जाए कि तुम जिस औरत के साथ रह रहे हो नाजायज तरीके से नहीं बल्कि ब्याह करके लाए हो, निकाह करके लाए हो। ये शरई ऐलान है। लड़की वाले के यहाँ खाने का तो कोई सिस्टम समझ में नहीं आता, कोई अकली दलील भी नहीं है कि उनके यहाँ खाओ ना। अल्लाह के रसूल ने अपनी 4 बेटियों का निकाह किया, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा का। आपने कभी अपने घर में अपनी बेटी के निकाह के वक्त किसी को खिलाया हो? नहीं मिलता है। अल्लाह के नबी ने 11 निकाह किए। आप जिस लड़की वाले के यहाँ गए और आपने जहाँ निकाह किया, ना बारात लेके गए और न वहाँ नबी की बीवियों के किसी बाप ने कोई खाना खिलाया, और ना ही हमें हदीसों में मिलता है कि किसी सहाबी ने अपनी बेटी का निकाह किया हो तो खाना खिलाया हो, क्योंकि ये अक्ल के खिलाफ है और शरईयत दलील भी नहीं है। शरीयत के अंदर भी इसका कोई सबूत नहीं है कि किसी सहाबी ने अपनी बेटी के निकाह में दावत दी। शरीयत आसानी पैदा कर रही है, नबी मेहरबान है, मुसीबतें हम अपने ऊपर। इस्लाम बहुत आसान है जिस पर अमल किया जा सके, लेकिन हमने पहाड़ बना दिया, मुसीबत बना दिया है हमने। फौरन निकाह हो गया, लेके चला गया। आज करके देख लो ऐसा निकाह। 3 सहाबियों पर मुश्तमिल वफ़द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास जाता है। पूछे अल्लाह के नबी कितनी इबादत करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, देखिए कितनी रहमत है इस्लाम। अल्लाह के नबी की बीवी निकल के आई, कहा कि हम नबी की इबादत के बारे में पूछते आए हैं कि अल्लाह के रसूल कितनी इबादत करते थे, रोजा कितना रखते थे, नमाज कितनी पढ़ते थे। आपकी बीवियों ने बता दिया, इतनी नमाज पढ़ते थे, इतना सोते थे, बीवियों के पास भी जाते थे, रोजा भी रखते थे, इतना रोजा रखते थे। अब ये तीनों लोग जब बाहर आए तो बाहर निकल के क्या कह रहे हैं? बुखारी शरीफ पढ़िए, किताबुल निकाह पढ़िए। ये तीनों जब आए तो क्या कहते हैं? हाँ अल्लाह के नबी और कहाँ हम, आईना कहाँ अल्लाह के नबी और कहाँ हम। अल्लाह के नबी के तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जन्नती हैं, वो इबादत ना भी करें तो अल्लाह के नबी जन्नत में जाएंगे। हमको नबी से ज्यादा इबादत करना चाहिए। और कर रहे हैं। उन तीनों ने क्या कहा? सहाबी हैं, हमको नबी से ज्यादा इबादत करना चाहिए। तो उन तीनों में से एक सहाबी ने कहा, एक ने कहा आज के बाद मैं दिन भर नमाज पढ़ूंगा, नहीं दिन भर मैं रोजा रखा करूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। हम रोजे से रहेंगे, कभी रोजा तर्क नहीं करेंगे, हमेशा रोजा रखेंगे, पाए दर पे, कभी छोड़ेंगे। आज के बाद हम रोजा ही नहीं छोड़ेंगे, हमेशा रोजा रखेंगे। दूसरे सहाबी ने कहा हम रात में नहीं सोएंगे, पूरी पूरी रात इबादत करेंगे। अब आप देख लीजिए, 2 लोग तैयार हो गए। एक ने कहा हम रात भर इबादत करेंगे, कभी नहीं सोएंगे, हमेशा रात में जागेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। दूसरे ने कहा हम दिन भर रोजा रखेंगे, कभी छोड़ेंगे ही नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। तीसरे ने कहा मैं पीछे क्यों रह जाऊं? उसने कहा कि मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात भर इबादत भी करूंगा, मैं अपने बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा, यानी बीवी के पास ही नहीं जाऊंगा। कौन जाए बीवी के पास? जाऊं फिर बच्चे होंगे, फिर उनके झमेले में पड़ो, फिर कमाओ, फिर खाओ, नहीं, बीवी के पास ही नहीं जाएंगे। अना अअतज़िलुन निसा, बुखारी के अल्फाज, मैं बीवी से अलग रहूंगा, नहीं मैं करीब ही नहीं जाऊंगा। देखिए 3 लोगों ने 3 काम बांटे। एक ने कहा मैं दिन भर नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं रात नहीं, एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा हमेशा, दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, तीसरे ने कहा मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। हो गया, अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं। हमारी और आपकी तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप नहीं देख रहे थे, हमारे और आपकी तरह रात भर 2 GB 3 GB मिल रहा है तो फ्री में पूरी रात गुजार देते हैं यूट्यूब पे देखते देखते। अब मैं पूरी हदीस सुनाने के बाद एक नुक्ता बताऊंगा आपको, एक मसला बताऊंगा आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ कि कुछ लोगों ने ये प्लानिंग कर ली, चाय वाले बैठ जाओ भैया, रोक दो, इनसे कह दो कि अब चाय ना बेचे, पीछे चले जाओ, पीछे जिसको पीना होगा वहां पी लेगा, यहां से थोड़ा हट जाइए, नहीं उनको पीछे कर दो, जिसको पीना हो चला जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको नींद नहीं आएगी, बाद में पी लीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। मेरे भाइयों, मैं जो बात बताने जा रहा हूं बहुत कीमती बात है, नबी की रहमत भी दिखेगी और एक नुक्ता भी मैं
آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ 3 لوگوں نے ایسا ایسا کہا تو اللہ کے نبی ان کے پاس گئے اور کہا انتم الذی قلتم کذا و کذا، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہے؟ کیا تم ہی ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا؟ ہاں تم ہی وہ ہو جو کہا تھا کہ رات بھر نماز پڑھوں گا کبھی نہیں سوؤں گا؟ کہ ہاں تم ہی وہ ہو جو کہا تھا کہ اپنی بیوی سے الگ رہوں گا اور کبھی میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا؟ اس نے کہا ہاں، مطلب جھوٹ نہیں بولتے تھے صحابہ۔ تینوں نے قبول کیا ہاں ہم نے ایسا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہو یا میں؟ بہت سلو اسپیڈ میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی عقل میں بیٹھ جائے یہ بات۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنی سرل اردو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی بمبئی والی اور راجستھان اور ہریانہ میں کی ہوئی تقریریں اگر وہ اردو بولنے لگوں گا تو آپ کے سر سے اوپر گزر جائے گی۔ میں نے اسپیڈ سلو کر دی، آپ کے دماغ میں گھسانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر یہ حدیث گھس گئی تو آپ کو بہت سی باتیں پتہ چل جائیں گی۔ سنو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم نے ایسا کہا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ کہ نہیں اللہ کے رسول آپ زیادہ ڈرتے۔ تمہیں اللہ کا خوف زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں آپ۔ تم زیادہ عبادت گزار ہو یا میں؟ نہیں اللہ کے نبی آپ۔ کہا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تو میرا حال یہ ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور آخری رات میں اٹھ کر میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، یعنی میں آنکھ کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تو میرا حال یہ ہے کہ میں مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں اور ہر پیر کا، سوموار کا اور جمعرات کا، گروار جمعرات تھرسڈے کا میں روزہ رکھتا ہوں۔ پیدر پہ میں روزے نہیں رکھتا ہوں، مسلسل میں روزے نہیں رکھتا ہوں۔ تم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے ہو، تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، ان کے حق بھی ادا کرتا ہوں، ان کے پرسنل حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے قریب بھی جاتا ہوں، یعنی میں اپنی بیوی سے ملاقات بھی کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کا پرسنل حق، میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں، میں اپنی بیوی کا پرسنل حق بھی ادا کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہی میری سنت ہے، یہی میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اگر میرے اس طریقے کو چھوڑو گے، میرے اس طریقے سے اعراض کرو گے، میرے اس طریقے کو چھوڑو گے، میرے اس طریقے سے اعراض کرو گے تو مجھ میں سے نہیں، مجھ میں سے نہیں، میری امت میں سے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رات بھر اگر نماز پڑھو گے تب بھی مجھ میں سے نہیں، ہمیشہ روزہ رکھو گے تو مجھ میں سے نہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ کر عبادت میں لگے رہو گے تو مجھ میں سے نہیں۔ آپ نے رات بھر نماز پڑھنے سے منع کر دیا، پیدر پہ مسلسل روزہ رکھنے سے منع کر دیا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر عبادت جو کر رہا ہے ایسی عبادت کرنے سے منع کر دیا۔ یہ نبی کی رحمت ہے کہ نبی نے کہا سوئیے بھی، آنکھ کا حق بھی ادا کیجئے، بیوی کا حق بھی ادا کیجئے، اللہ کی عبادت کے لیے رات میں اٹھ بھی جائیے اور مہینے میں 3 روزے رکھ لیجئے یا جمعرات یا سوموار کا روزہ رکھنا شروع کر دیجئے اور بقیہ چھوڑ دیجئے۔ یہی میری سنت ہے۔ اب نقطہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سن لیجئے، جب نماز پڑھنے کے لیے پوری رات نہیں جاگا جا سکتا ہے، جب بیوی کو چھوڑ کر پوری رات عبادت کرنا جائز نہیں ہے، تو کرکٹ کی میچ میں پوری رات خرچ کر دینا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ پوری رات فلمیں دیکھنے میں گزار دینا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ جب رات بھر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، رات بھر اپنی بیوی کو چھوڑ کر آنکھ کا حق توڑ کر اور آنکھ کا حق مار کر آپ اگر نماز پڑھ رہے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو سوچئے، اپنا آنکھ کا حق مار کر پوری رات لہو لعب میں گزار دینا، میچ میں گزار دینا، جوئے میں گزار دینا، نوجوان لڑکوں کے ساتھ پوری کی پوری رات
बर्बाद कर लेना सड़कों पर, ये कहां से जायज हो जाएगा? जब पूरी पूरी रात इबादत करने वाले को अल्लाह के नबी कह रहे हैं तुम मुझ में से नहीं, मेरी उम्मत में से नहीं, मुसलमान में से नहीं, तो गौर करो कि हम और आप कहां से उम्मत में से हो जाएंगे जो पूरी पूरी रात लहू लाइब में और खेल कूद में गुजारते हैं। बात तो बहुत कड़ी कह दी है मौलाना, हम पूरी पूरी रात गुजारते रहे, एक एक और दो बजे तक हमारी बेटियां नेट चलाती, लड़कियां, क्या भाई जिम्मेदार नहीं है? क्या बाप जिम्मेदार नहीं है? और माँ सब जानती है। एक बार बहन के भाई को पता नहीं होगा, बाप को पता नहीं होगा, लेकिन माँ ऐसी हो ही नहीं सकती जिसको पता ना हो कि मेरी बेटी किससे बात करती है। लेकिन माँ भी उसको आजादी दी हुई है, अपना हम सफर चुनने का हक है, दे जाओ। ये नबी की रहमत है कि आपने रात भर नमाज पढ़ने से और मुसलसल रोजे रखने से मना कर, ये नबी की रहमत है। नबी की रहमत का मंजर देखना हो तो आओ मैं आपको दिखाऊं, आप ताज्जुब करेंगे कि ऐसी रहमत। मेराज पे गए, पहले बैतुल मुक़द्दस गए, नबियों को नमाज पढ़ाई, वहीं से आप मेराज सातों आसमान की सैर की, तो वापस आ रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के ऊपर 50 वक्त की नमाज, और मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ क्योंकि रात का 2:30 बज रहा है, पता लगाने के लिए कि देखे कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है। कितने वक्त की नमाज फर्ज हुई? 50। आप लेके चले आ रहे हैं, ठीक है 50। खुश है, अल्लाह के नबी खुश है। और जब लौटते हुए 7वें आसमान से 6ठे आसमान पर आए, भाई जब लौटेंगे तो 7 में से पहले 6ठा ही तो पड़ेगा, फिर 5वां, फिर 4था, आ रहे हैं वापस। तो जब 6ठे पर आए तो वहां मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं दरवाजे पर। ऐ मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मिला? मैं आपके दिमाग में घुसा रहा हूँ, सुनिए क्या दिया अल्लाह ने। कहा मूसा अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा वो सुनिए, अरे अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 वक्त की नमाज है, ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं जाइए कम कराइए अल्लाह के पास। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मेरे रब ने तोहफा दिया और मैं उसमें कम कराऊं? नहीं, मूसा को मना कर दिया डायरेक्ट, मैं कम नहीं कराऊंगा, मैं नहीं चाहूंगा। अब मूसा ने जो बात कही उसको गौर से सुनो। आए मोहम्मद आप तो पढ़ लोगे 50 वक्त की नमाजें, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, लेकिन आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। चीज बताना है, जब अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, इसका मतलब नहीं पढ़ेगी तो गुनाहगार होगी तो जहन्नम में जाएगी। मूसा ने कहा वही मैं बता रहा हूं। आए मूसा अगर मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी तो फिर क्या फायदा कि मेरी उम्मत के अपराध जहन्नम में जाए? नहीं, मैं अपनी उम्मत को जहन्नम में जाता हुआ नहीं देख सकता। अल्लाह के नबी फिर जाते हैं, आए अल्लाह जी क्या बात, कुछ कम कर दे। डू यू वांट डिस्काउंट? तखफीफ चाहते हो नमाजों में कमी? जी मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, आए मोहम्मद 10 वक्त की कम कर दूं 40। ये अल्लाह को तो मालूम ही है। फिर आए 6ठे आसमान पर, मूसा ने कहा कहो क्या हुआ? है मूसा अल्लाह ने 10 वक्त की कम कर दी। देखिए नबी खुश हैं, अपनी हैसियत से सोच रहे हैं मैं तो पढ़ दूंगा, खुश हैं। मूसा ने कहा ये भी ज्यादा, फिर जाओ। कहा मूसा 10 वक्त की कम कर दी और कितनी कम कराऊं? अरे जाओ रब बड़ा मेहरबान है कर देगा। नहीं मूसा एक बार कम कर तो दी। मूसा ने फिर कहा इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत 40 वक्त की भी नहीं पढ़ पाई, 40 वक्त की भी नहीं पढ़ पाई। आए मूसा तुम्हें तजर्बा है, तुम अल्लाह के नबी बनकर पैगंबर बनकर जा चुके हो, तुम्हें नबूवत का तजर्बा है, ठीक है अगर मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकती तो फिर जाऊं। फिर गए। अल्लाह ने कहा अब क्या हुआ? अल्लाह मेरी उम्मत 40 की भी नहीं पढ़ पाई, और कम कर दूं? हाँ 10 और कर दूं 30। मूसा ने कहा ये भी ज्यादा है। जब कहते थे इन्ना उम्मतक ला तुतीक, जब उम्मत का नाम सुनते फिर चले गए। अल्लाह 30 भी ज्यादा, कहा ठीक 20। फिर आए मूसा ने कहा ये भी ज्यादा है, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। फिर गए अल्लाह ने कहा 10, जाओ ठीक। मूसा 10 रह गई, अब तो जाओ। नहीं ये भी ज्यादा, कहा नहीं अब नहीं जाओ, 10 वक्त की पढ़ लेगी मेरी उम्मत। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तजर्बा बताया, आए मोहम्मद
तुम कह रहे हो मेरी उम्मत 10 वक्त की पढ़ लेगी, मेरी उम्मत पर तो 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 10 वक्त की कैसे पढ़ लेगी? मुझे तजुर्बा है, आपकी उम्मत 2 वक्त की भी नहीं पढ़ पाई। नहीं, फिर गए अल्लाह के पास। अल्लाह ने कहा अब क्या हुआ? तो अल्लाह मूसा कह रहा कि मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 10 वक्त। अल्लाह मेरी उम्मत के लिए और मेहरबानी कर दे, तखफीफ कर दे। अल्लाह ने कहा 5 चले जाए। मूसा ने कहा कितनी हुई? कहा 5। एक बार और चले जाइए, ये भी ज्यादा है। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं मूसा, मुझे अपने रब के पास बार बार जाने में शर्म आ रही, कितनी बार कम कराऊं? 5 ठीक है। जैसे ही नबी ने कहा 5 ठीक है, मुझे अपने रब के पास बार बार जाने में शर्म आ रही है, कितनी कम कराऊं? आवाज आती है ऊपर से, आए मोहम्मद तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए, आए मोहम्मद तुम मुझसे शर्मा गए, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम एक बार और मेरे पास आ जाते तो मैं और कम कर देता, लेकिन अब तुमने मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए, शर्मा गए। जाओ, मैंने 5 वक्त की नमाजें अब फर्ज कर दी है, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं, 5 वक्त की मोहर लगा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ, कह रहा था चले जाओ चले जाओ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ बैठ के बड़े दिमाग में लगा के सोच रहे होंगे कितनी बड़ी गलती कर गए। अच्छा, कुछ लोग हैं कि खुराफाती खोपड़ी वाले सोच रहे होंगे अल्लाह के नबी काश एक बार और चले गए होते तो 3 वक्त की और खत्म हो गई होती। सुबह उठो पढ़ लो, शाम को सो पढ़ दो, बस आराम से 2 वक्त की नमाज। अरे मेरे भाइयों, मूसा का तजर्बा है कि मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। अल्लाह के नबी अगर एक बार और चले गए होते और 3 वक्त की और कम हो गई होती, 2 ही वक्त की रह जाती। जिसको नहीं पढ़ना वो 2 वक्त की भी नहीं पढ़ पाता है, और पढ़ने वाले 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते। बताओ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ने वाले 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद भी पाबंदी से पढ़ लेते हैं, और न पढ़ने वाले 2 वक्त की तो छोड़िए, जुमा तक उनको नसीब नहीं होता है, और बहुत सौ को तो ईद और बकरीद तक भी नसीब नहीं होती है। न पढ़ने वाले जुमा तक नहीं पढ़ रहे हैं, और पढ़ने वाले 5 वक्त के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कितनी अहमियत देते हैं। बॉम्बे की सरजमीन पर मैंने एक तकरीर की थी, और उसके बाद फजर की नमाज के बाद पसीने भरने लगी, फजर में पसीने भरने लगी, सोते रहते थे। लेकिन बॉम्बे में हाल ये था कि पानी आता था सुबह 4 बजे और 6 बजे चला जाता, तो 4 बजे पानी भरने के लिए सब उठते थे, लाइन लगाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर सोते रहे 6 बजे पानी चला गया तो कुल्ला तक नहीं कर पाएंगे। मैंने मिसाल दी थी कि आदमी जब इसको अपनी जिंदगी से जोड़ लेता है तो पानी भरने के लिए देख लो, हमारी औरतें भी 4 बजे उठ जाती हैं, हमारे बूढ़े भी उठ जाते हैं, हमारे भाई भी उठ जाते हैं। ये उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अगर नमाज को भी अपनी जिंदगी से जोड़ लें और ये सोच लें कि ये भी हमारी ड्यूटी है, तो यकीन मानिए आप फजर की नमाज के भी पाबंद बन सकते हैं। और जब 4 बजे उठते ही है तो फजर की नमाज पढ़ने में आपको दुश्वारी क्यों आ रही है? जिस तरह जिंदगी का एक हिस्सा है पानी, और पानी को भरने के लिए आप 4 बजे भी उठ जाते हैं, अलार्म तक लगा लेते हैं, तो उस तरीके से फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप अलार्म क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्यों नहीं उठ सकते हैं? नमाज को भी हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझें, और पैदा ही हम हुए इबादत के लिए। मेरे भाइयों, ये बात उनके दिलों में ऐसी भरी कि जो 10 आदमी नमाज पढ़ा करते थे बंबई की उस जिस जगह मैंने तकरीर की चीता कैंप के अंदर, वहां तमाम की तमाम लोग पूरी की पूरी मस्जिदें भरना शुरू कर दिए। अब हमने देखा ज़ुहर में और असर में इतने लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, क्योंकि कोई दुकान पे गया, कोई ऑफिस में गया, और फजर की नमाज में हम देखते थे कि मस्जिद बिल्कुल चकाचक भरी हुई है। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी से जोड़िए और ये सोचिए कि जिस तरह अगर पानी 4 बजे आता है तो हमें उठना पड़ता है, ऐसे ही उससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए नमाज, हम नमाज के लिए भी उठेंगे। तो फिर आदमी इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेगा, अलार्म लगाएगा। अगर इसको जोड़ ले कि जिस तरह पानी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, नमाज भी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए जा रहे हैं, इन उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती। फिर गए अल्लाह का नबी का मामला देखिए। अल्लाह ताला ने
आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने रसूलों को, जितने नबियों को इस दुनिया में मबऊस फरमाया, सुनिए बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, जितने नबियों को भेजा उन सारे नबियों को एक दुआ दी थी इख्तियारी, ऐ नबियों, ऐ पैगंबरों, मैं तुम्हारी कोई दुआ सुनूं या ना सुनूं, लेकिन एक दुआ का इख्तियार तुम्हें देता हूं, मांगो जो तुम्हें मांगना है, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा, इख्तियार देता हूं, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। लिकुल्ले नबिय्यिन दावतुन व दावतुम व दावती इख्तबातु दावती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हर अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ का इख्तियार दिया, उसने दुनिया ही में अपनी दुआ मांगी। जितने नबियों से कहा उस नबी ने दुनिया ही में अपनी दुआ मांग ली और अल्लाह ने दुनिया ही में उसको दे दिया। अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा, तुम्हें भी इख्तियार है, जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हर दुआ सुनूं ना सुनूं ये मेरे ऊपर है, लेकिन एक दुआ का इख्तियार है, मांगो क्या मांगते हो। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ को छिपा लिया, नहीं मैं दुनिया में नहीं मांगूंगा, मैं दुनिया में नहीं मांगूंगा। सारे नबियों ने मांग ली। हजरत आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको इख्तियार दे दिया है दुनिया में दुआ मांगने का, तो मांग लो। सुबह हम उठते हैं भूखे तो शाम को खाना मिलता है, और शाम को अगर भूखे सोते हैं तो सुबह मिलता है, शाम को खाऊं तो सुबह भूखा, और सुबह खा लूं तो शाम को भूखा सोना पड़ता है। अल्लाह ने इख्तियार दिया है, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग लो, मालो दौलत मांग लो, सोना चांदी मांग लो, दुनिया की जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजर जाए, दुआ मांग लो। हजरत आयशा मशवरा दे रही है कि मांग लीजिए, हमारी जिंदगी इस तरीके से क्यों कटे, इस हाल में क्यों कटे कि 2-2 महीने तक घर में चूल्हा न जले, इस हाल में हमारी जिंदगी क्यों कटे। अल्लाह ताला तो आपको इख्तियार दे रहा है कि एक दुआ है, मांग लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा ये जिंदगी तो कैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन मैं ये दुआ जिसका इख्तियार अल्लाह ने दिया है वो मैं दुनिया में नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। ये दुआ बाकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन नबी अकरम से कहेगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि अल्लाह, सारे नबियों को तूने एक एक दुआ दी थी, इख्तियार था कि जो मांगो दूंगा, उन्होंने दुनिया में मांग ली लेकिन मैंने नहीं मांगी। आय अल्लाह, वो दुआ मेरी बाकी है जो मैं आज मांगना चाहता हूं। अल्लाह कहेगा, हाँ मोहम्मद तुम्हारी एक दुआ बाकी है, इख्तियार है, तुम्हें मांगो, क्या मांगते हो। मैंने वो दुआ क़यामत के दिन के लिए छिपा ली है। अल्लाह के नबी कहते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह मुझे इजाजत देगा, उस वक्त मैं मांगूंगा। फरमाया, अय अल्लाह के नबी, क़यामत के दिन आप क्या मांगेंगे। अय अल्लाह के रसूल, हज़रत आयशा कहती हैं, क़यामत के दिन आप क्या मांगेंगे। फरमाया, आयशा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मेरी उम्मत गुनाह की वजह से जहन्नम के किनारे पे खड़ी होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, और उस वक्त अल्लाह ताला कहेगा, मोहम्मद मांगो, क्या मांगते हो। मैं कहूंगा, अल्लाह मेरी इख्तियारी दुआ बाकी है, आज वो दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए मांगना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा शफ़ी उम्मती, आय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत की शिफाअत फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहमो करम फरमा। मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों को क़यामत के दिन अल्लाह से दुआ करके उनको बख्शवाऊंगा, उनको जन्नत की तरफ ले जाऊंगा, उनको जन्नत का मुस्तहिक बनाऊंगा, और अल्लाह मुझे ये पावर, ये इख्तियार देगा। मेरे भाइयों, नबी अकरम का दुआ को छिपा लेना, जबकि सोना मांगने का अधिकार, चांदी मांगने का अधिकार, दौलत मांगने का अधिकार नबी को है, लेकिन अल्लाह के नबी सोना नहीं मांग रहे, दुनिया में अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, और उस दुआ को छिपा रहे कि क़यामत के दिन में मांगूंगा। हजरत आयशा फरमाती है, नबी अकरम का दुनिया में दुआ न मांगना, उस दुआ को क़यामत के दिन के लिए छिपा लेना, और क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शिफाअत करवाना, उस दुआ के जरिए रहमतल लिल उम्मती, ये नबी की अपनी उम्मत के साथ रहमत की दलील है कि नबी अपनी उम्मत के लिए कितना मेहरबान है।
उस नबी ने तो अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं और एक दुआ का इख्तियार भी दिया तो उसको भी अपनी उम्मत के लिए छिपा लिया जो कयामत के दिन मांगेंगे। कितना मेहरबान, कितना मेहरबान है वो नबी। जरा सोचिए मेरे भाइयों, कितना मेहरबान है उस नबी की रहमत भरी तालीमात अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। उस जमाने में औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आया करती थी, पर्दे की ओर से नमाज पढ़ा करती थी। मुसलमानों जरा सुनो, नबी की रहमत का जरा नजारा देखो। अल्लाह के नबी नमाज में होते थे और नमाज में आप लंबी किरत करने का इरादा करते थे और आप शुरू कर देते पीछे औरतों के मजमे में जो नमाज पढ़ने आई किसी बच्चे की रोने की आवाज आती, मोहम्मद रसूलुल्लाह वहीं से अल्लाहु अकबर कहकर रुकू करते, छोटी छोटी सूरत पढ़ाकर नमाज पढ़ाकर सलाम फेर देते। मेरे नबी की रहमत को ये भी गवारा नहीं कि मैं लंबी लंबी सूरत पढ़ता रहूं और पीछे मेरी उम्मत की औरत, मेरी उम्मत में रहने वाली औरत अपने बच्चे के लिए परेशान हो, बच्चा रो रहा है, हो सकता है कि वो दूध पीने के लिए रो रहा हो, ये भी हो सकता है कि उस बच्चे के पेट में दर्द हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत के लिए इतने मेहरबान है, इतने मेहरबान है कि आपने हुक्म नाफिज फरमा दिया। आए मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले पढ़ाने वाले मौलवियों, आए मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले इमामों, तुम्हें अकेले नमाज पढ़ना है तो जितनी लंबी पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन जब तुम लोगों की इमामत करो तो तुम मुख्तसर नमाज पढ़ाया करो, तुम छोटी नमाज पढ़ाया करो, इसलिए कि तुम्हारे पीछे बूढ़े भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बीमार भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं। मेरे नबी की रहमत को ये गवारा नहीं कि तुम लंबी लंबी नमाज पढ़ो और कोई बूढ़ा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर जाए। मेरे नबी की रहमत को ये भी गवारा नहीं कि तुम लंबी किरत करो और कोई बच्चा भूख की वजह से रोता रहे, चीखता रहे। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने मौलवियों को, इमामों को हुक्म दे दिया कि जब तुम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाओ तो मुख्तसर और छोटी नमाज पढ़ाओ। ये नबी की रहमत की दलील है, ये नबी की रहमत की दलील है। कितना मेहरबान है वो नबी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। उस जमाने में आजकल की तरह लाइटें नहीं थी, लोग बिस्तर पे जब सोते थे तो बगैर झाड़े सो जाते थे। कभी कभी छिपकली वगैरह या मौजी जानवर उसको पड़ा रहता था जो काट लेता था और डस लेता था, जिसके जहर से वो आदमी मर जाया करता था। मेरे नबी की रहमत देखो कि हुक्म दे दिया कि जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो बिस्तर को झाड़ लिया करो, झाड़ने के बाद उस पर सोया करो। नबी अकरम की रहमत को ये गवारा नहीं कि मेरा उम्मती ईशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पर ऐसे आए और लेट जाए और कोई खतरनाक जानवर मेरे उम्मती को काट ले और उसके जहर से वो मर जाए। मेरा नबी ऑर्डर देता है, फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर में जब सोने जाओ तो अपना चिराग बुझा दो। उस जमाने में कच्चे मकान हुआ करते थे, अगर चिराग जलता हुआ छोड़ दिया, तेज हवा चली और उसकी चिंगारी उठकर किसी फूस के मकान में कहीं लग गई तो पूरा मकान जल जाया करता था। फरमाया जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो। मेरे नबी की रहमत को ये भी गवारा नहीं कि तुम चिराग जलता हुआ छोड़ दो और सोते रहो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं इतनी गहरी नींद में सोते रहो कि हवा चले और चिराग उड़कर तुम्हारे मकान को जला दे, तुम्हारे कपड़े को जला दे, जिसकी आग में जलकर तुम मर जाओ। फरमाया चिराग बुझा दिया करो। ये चिराग बुझाने की हदीस हमारी लाइट पर भी फिट उतरेगी, क्योंकि कभी कभी रात में वोल्टेज हाई आए और शॉर्ट हुआ तो बल्ब की चिंगारी से भी आपका मकान जल सकता है। इसलिए चिराग बुझाने की हदीस लाइट बुझाने पर भी दलील है, यानी लाइट बुझा कर सोया करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आपने फरमाया लोगों जिनके घरों की छत खुली हुई और उस पर चहारदीवारी न हो तो खुली हुई छत के ऊपर न सोया करो, उसके ऊपर मुंडेर बांध लो, चहारदीवारी कायम कर लो। अगर खुली हुई छत है तो छत के ऊपर मत सोया हो, इसलिए कि
कि नींद में सोता मरता बराबर होता है। अचानक पेशाब करने के लिए उठे और नींद की हालत में हो तो ऐसा न हो कि रात के अंधेरे में तुम उस चार दीवारी से जमीन के ऊपर गिर जाओ, नीचे गिर जाओ और मर जाओ। तो फरमाया खुली हुई छत के ऊपर मत सोया करो। अगर छत खुली और मुनेर नहीं बंदी तो आपने फरमाया उस खुली हुई छत के ऊपर मत सोया करो। एक सहाबी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उनके हाथों में कई तीर है। तीर का एक गुच्छा बंधा हुआ है और तीर की नोक आगे की तरफ होती है ना, वो कमान में लगा के जब छोड़ते हैं तो आगे कोई आदमी घायल हो जाता है, तो वो ऐसे लेके चल रहे थे, ऐसे जैसे हम लोग लाठी वाठी लेके चलना है। तो वो सहाबी अजान की आवाज सुने मस्जिद में जाने लगे और तीर ऐसे ऐसे लेके जा रहे थे। अल्लाह के नबी वुजू बना रहे, नबी की नजर उस सहाबी के ऊपर पड़ी जो तीरों का गुच्छा लपेटे हुए है और तीर की नोक बाहर की तरफ निकली हुई है। आपने वुजू बनाना छोड़ दिया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आप उस सहाबी के पास आए, आपने फरमाया अपनी मुट्ठी, अपना हाथ इन तीरों के नोक वाले हिस्से पर रखकर इनको छिपा लो, यानी आगे के हिस्से को मजबूती से पकड़ लो। मुस्लिम के अल्फाज कैला तख्तिशु मुस्लिमन, कहीं तुम्हारे हाथ के तीरों की नोक से कोई मुसलमान जख्मी न हो जाए, किसी सहाबी को ये तीर चुभ न जाए। मेरे भाइयों, ये नबी की रहमत है। मेरे नबी की रहमत को ये भी गवारा नहीं कि कोई सहाबी तीर लेके चल रहे हैं और अंदाजे से बाहर वो तीर किसी सहाबी को लग जाए, किसी मुसलमान को लग जाए और वो जख्मी हो जाए। मेरे नबी की रहमत को ये भी गवारा नहीं है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए कि कितना मेहरबान है वो नबी, कितना रहमत वाला है वो नबी। इसी को कुरान ने कहा बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के लिए बड़ा मेहरबान है। मैं जानता हूं मेरे भाइयों, और याद रखिए अभी तो जब हम घर में थे तो कह रहे थे कि मौलाना साहब फजर तक तकरीर चलेगी, फजर तक को लोग कहां जाएंगे। मैंने कहा वो जमाना गया, अब लोग फजर तक नहीं बैठते हैं और सर्दियों की रातों में रात के 12 बजे और 1 बजे से ज्यादा प्रोग्राम अब चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब लोग नहीं बैठते हैं। अब ये मेरा तजर्बा है कि 12 और 1 बजे से ज्यादा अब कोई जलसे में पब्लिक नहीं बैठती। कल भी देखिए मुझे 12 बजे टाइम दे दिया गया और 2 बजे जलसा खत्म हो गया। और अब बीच में मैं जानता हूं कि आप लोग इतनी रात तक बैठे, बहुत बड़ी बात हो गई है। अब पर्चा आ गया मेरे पास कि अब ये भी चले जाएंगे तो फिर जो ईदगाह का मामला है मेरे भाइयों वो फिर बाकी नहीं रहेगा। उसके अंदर अनहोनी बातें, चमत्कार, मुअज्जिज़े दिखलाने वाली एक हस्ती पैदा होगी, मुअज्जिज़े दिखलाने वाली, चमत्कार दिखलाने वाली हस्ती पैदा होगी। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत करेगा, आपन मकसद का समझावे। नरमी की जगह नरमी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती करेगा। नरमी भी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती भी करेगा। अल्लाह के नबी ने नरमी भी की और सख्ती भी की। सख्ती की तो इतनी नरमी की तो इतनी नरमी की कि आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल जिसने तीर मारा था हिमार इब्न अस्वद ने, और वो नबी अकरम की बेटी ज़ैनब के पेट में लगा था, ज़ैनब के पेट में बच्चा था, वो पेट फट जाता है और अल्लाह के नबी की बेटी ज़ैनब के पेट का बच्चा जमीन पे गिर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला, पाए हजरत ज़ैनब को उठाया, मदीने ले गए, लेकिन बच्चा ज़ाय हो चुका था। ज़ैनब को जब होश आया और पता चला कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकी और उसी सदमे में उनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी ने ज़ैनब को दफना दिया। 10 साल के बाद जब मक्का फतह होता है और मक्के में ये मुजरिम जिसने ज़ैनब को तीर